Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss about the creative accounting, and in this session, inshallah, we'll talk about what creative accounting is all about. Is it good or bad for the business organization? Then the internal and external motives of the creative accounting, and lastly, we'll discuss about the different techniques which are being used by the managers for doing these practices, or manipulating or playing with the numbers of the financial statements. So, starting with the very first thing, that when we talk about creative accounting, what comes in your mind? What basically is creative accounting? Ji, any one of you who can tell that what is creative accounting? As the name suggests, it's something to create some activity in the accounting with a specific purpose, probably to remain valid in a business by giving various financial statement in a way that your business does not slide down further. Okay, so it means that to show a better position of the business organization, to reflect better, you can say, financial situation of the business organization, creative accounting is done. Ji, anyone else? Ji, what is creative accounting? Any idea, jo? Any rough idea, any vague idea, jo? Sir, Yes, sir. Yes. one could be that imaginative ways to deal the account, sir. In the layman language, that the new ways and methods used to deal the accounting, that should be called the creative. These new ways are something which is basically permitted by the international accounting standards, or these are something which are beyond the scope of the international accounting standards, and these have been devised by the business managers. What do you think? Ji Zishan, these new ways are is something that has been devised by the Sorry, business managers. sir, आवाज distortion हो गई थी आवाज का. अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज? Sir, I'm not getting actually. My connection has some problem. जी sir, please sir बताइए. जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि when you are saying that this is something creative done by the managers, so it is done within the remaining within the scope of the international accounting standards, or we can go beyond the international accounting standard or international financial reporting standards to be creative. So logically speaking, it should be within the scope of the international standards, because if you go out of the standards, then there could be anything which is not acceptable to other people. So it should remain in the international accounting standards as per my view, sir. So then it would be an exercise that would be legal. Yes, it should be, sir. It should be legal. It should be legal, जो है ना उसमें. What about its ethical perspective? That's debatable, sir. Ethics have different standard for different people, sir. Okay, ठीक है. And depending on the situation, that how that creative accounting has been used, that can basically refer to the ethical situation. Maybe sometime it is done in the good faith, sometime it is done for the deception of the other people. So that would make it ethical or unethical. Okay, ji. Moving forward, basically, as far as the definition is concerned, creative accounting refers to the purposeful intervention in the external financial reporting process with the intent of obtaining some exclusive gain. For example, the company wants to have the tax benefit, they want to go for the tax aversion or tax evasion, they can go for using those techniques which can help them to reduce the tax burden of the current year. Maybe in the particular year, the company wants to show higher profits. The company is going for initial public offering. The company is going to issue more equity or the shares. The company is looking forward to take loan to finance its new projects. So they have to show a better performance or a better financial position of the business organization. So what they can do is they can play with the numbers so that whatever they want to gain from that, you can say number game, they can do it.
That is basically the creative accounting. Another definition says that creative accounting is the transformation of the financial accounting figures. Just look at these words. Transformation of the financial accounting figures means that you play or you change the financial values from what they actually are to what preparer decides. ठीक है? You are not looking for that thing कि वो actually है क्या, जो आप चाह रहे हैं आप उसके accordingly उसको क्या करते हैं, manipulate. For example, current year में आप अपने profit को reduce करना चाह रहे हैं, तो उस profit को reduce करने के लिए you will play with the revenues and expenses. Either you will reduce your revenue or you will increase your expenses so that that profit can be achieved. ठीक है जी? And by taking advantage of the existing rules and or ignoring some or all of them. नमाज और क्लास लेट हो रही ठीक है? और ये जो आप जो benefit ले रहे होंगे, you are staying within the rooms, within the practices you are staying, and you are actually playing with the numbers. Or it can be any all the steps used to play the financial number game, including the aggressive choice. For example, aggressive choice में ये है कि when you are using the depreciation methods, there are different methods that are available to the manager जो है ना. There is no such restriction that you go with the straight line method only or declining or double declining or any other method जो है ना उसमें. So for instance, if you are using declining balance method of depreciation, and let's suppose you have acquired an asset and it has useful life of, let's suppose, 10 years. So if you want to calculate the depreciation rate of this on this asset, so how can you calculate it? How the depreciation rate on any asset can be calculated? और एक स्ट्रेट मेथड है और एक दूसरा है जिसमें वो ग्रेजुअली डाउन करते हैं सर. जी जी, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिक्लाइनिंग होगा ना. अगर हमें ये डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है कि हम क्या रेट चार्ज करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? सर जो भी उस टाइम का वो सूद की परसेंटेज होती है उसके जाने से पहले वो रिटायर हो गए तो इसमें क्या नहीं ये काइंडली कुछ हो गया. बाकी लोग माइक्स जो ऐसा कमीशन हुआ था और वो सन्यासी में रिटायर हो गए. और ये जो है ये तो मेरे ख्याल में कमीशन ही कहीं नहीं 85 सर में हुआ. करोगे यार, what can I do with this? आप सर सबको म्यूट कर दें, फिर जब सवाल पूछना हो तो. एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा जरा. जैसा Okay, Ji. This is depreciation rate. So if you want to calculate the depreciation rate on any particular asset, it is basically 1 divided by the estimated useful life. Okay, 1 divided by estimated useful life of the asset. So for example, you have purchased a machinery that costs, let's suppose, 100,000 and its estimated useful life is 5 years. So 1 divided by 5, the answer would be 0.20, and if you want to convert it into percentage, this would become 20%. Agreed? जी सर. This is the simplest way of calculating the depreciation rate of any particular asset. Now it's your choice that either you want to go for straight line method of depreciation. If there is straight line method of depreciation, so depreciation would be charged on original cost. तो ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर होगी तो इट्स 100,000, assuming that there is no scrap value. तो 100,000 का 0.20 ले लेंगे तो that is 20%. So every year you will charge depreciation of 20,000. तो फर्स्ट ईयर की जो depreciation है ये भी 20,000 आ जाएगी. The same goes for the remaining years, second, third, fourth और fifth year जो है, इनमें भी amount of depreciation जो है वो same रहेगी जो है ना उसमें. ठीक है जी. So this is one possibility. You can go for declining balance method of depreciation.
In case of declining balance method, every year depreciation is charged on the book value, जो remaining आपके पास रहेगी. In declining balance method, in first year, the depreciation will be charged like this: 100,000, 20%, that is 20,000. Next year, when you will charge the depreciation, what you will do, you will not charge the depreciation on cost of the asset, rather you will charge it on book value. So book value is cost minus accumulated depreciation. So 100,000 minus 20,000, the remaining book value of the asset is 80,000. So in this case, 80,000 would be charged as depreciation. So if this is 80,000, 80,000 into 0.20, this would become 16,000. So on and so forth. In next year, again, the amount of the previous depreciation would be charged. 80,000 minus 16,000, this would become 64,000. So if this is 64,000, we will charge again 20% depreciation, 0.20, and this would become this 12,800, so on and so forth. Now, if you want to go for the method of depreciation in which amount is charged equal in every year, you can go for straight line method of depreciation. If you want that in initial year amount of depreciation should be high and in the preceding year the amount should be less, you can go for declining balance method. In the same way, you can also go for aggressive accounting choices. Aggressive means instead of using declining balance, you can go for double declining balance. In double declining, ये जो आपने depreciation charge की हुई थी 20%, simply आप ये करेंगे, as the name suggests, double declining. तो 20% को multiply by 2 कर देंगे, तो this would be 40%. So in the first year, how much depreciation you will charge? You will charge depreciation of 40%. So in this situation, instead of this 20,000 of depreciation, you are charging 40% depreciation. So that would be 40,000. And if it is half year convention, तो obviously वो value जो है ना वो change हो जाएगी. Now, just look at these things. Just by changing the method of depreciation, you are changing the depreciation expense. So by your own choice, if you go for an aggressive method of depreciation, the depreciation expense would increase. When the depreciation expense would increase, so automatically what would happen is your profit would decrease. And if you are going to reduce the tax burden for the current year, you want to have the tax evasion, you can simply do it by changing the method of depreciation. So this is a possible way through which what you can do is you can play with your numbers by using the aggressive choices. And application of the accounting principles. ठीक है, accounting principles की application क्या है? For example, there is a prudence or conservatism principle that says that anticipate all future losses. तो फ्यूचर लॉसेस को जो आपने एंटीसिपेट करना है, तो जब आप प्रोविजंस क्रिएट कर रहे होते हैं बैड डेट्स की, तो आप कहते हैं जी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2% नहीं है 5% कर दी, बिकॉज वी आर एंटीसिपेटिंग मोर बैड डेट्स इन द अपकमिंग टाइम पीरियड. तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग जो है वो प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज यूज करके प्रोविजन की वैल्यू चेंज की. प्रोविजन की वैल्यू चेंज होने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आपका रिड्यूस हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट चेंज हो जाएगा जो है. या इसी तरीके से fraudulent फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चले जाते हैं जो है ना, द वे दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड, उनकी जो एक्चुअल जो सिचुएशन है दैट इज टोटली डिफरेंट. ये जो एनरॉन वगैरह का केस हुआ था लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था, तो उसमें बेसिकली है क्या था कि सब्सिडरीज और सब्सिडरीज में जब ग्रुप अकाउंट्स बनते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स. उसमें क्या हुआ कि एनरॉन जो जर्मनी थी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एनरॉन न्यूयॉर्क, that applied for a loan that worth billions of dollars. So obviously having a small balance sheet, bank refused to lend them the loan क्योंकि उनके पास जो है ना debt paying ability इतनी नहीं थी. So what Enron Germany basically did, they asked help from Enron New York. Being the parent company, having huge assets, they provided the financial, they provided the security facility जो है ना उसमें कि you can use our assets as a security. जी पेरेंट कंपनी जो है उसमें यू कैन यूज दी एसेट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, और उस पेरेंट कंपनी की जो एसेट्स है उसकी बेसिस के ऊपर लोन के लिए अप्लाई कर लें. तो उस बेसिस के ऊपर जो जर्मन जो सब्सिडी थी उसको लोन जो है ना वो ग्रांट कर दिया. अब ये जो जर्मन सब्सिडी थी जिसने वो लोन लिया, टेक्निकली दैट वाज लायबिलिटी फॉर देम, लेकिन उन्होंने तो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो किया. जो मेन कंपनी थी, जो पेरेंट कंपनी थी,
उन्होंने उसको लोन की बजाय उसको अपने रेवेन्यू के तौर पे शो किया कि दैट वी हैव प्रोवाइडेड देम द डेट सर्विसेज, we have given them the assets as a security, and against the backup of that security they have acquired the loan. So this is basically the financial services that we have given to the subsidiary company. So this is revenue for the parent company. तो अब देखें आप वही चीज जो सब्सिडी जो है वो लोन ले रही है, वही पेरेंट कंपनी जो है उसको क्या कर रही है, रेवेन्यू के तौर पे शो कर रही है. एंड ओवर एंड अबव that not only that was shown as revenue of the business organization, but by treating that revenue they inflated the profit, और वो जो ज्यादा प्रॉफिट आया उसकी बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट को जो है ना बेतहाशा जो है ना वो बोनसेस और पर्स और बेनिफिट्स जो है ना वो दिए गए जो है ना उसमें. So that basically led to the downfall of the business organization. So when you are going into these malpractices, sometimes it happens that the business organization's survival becomes doubtful. Your business organization may not be able to survive in the future. So these are the different techniques to which you can go for changing the financial number game. So now the question that arises is creative accounting good or bad? So what's your opinion? स्ट्रेटेजिकली तो गुड. इसको फॉलो कर रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किसी को हार्म पहुंच रहा है इससे और कोई ऐसे डिसीजंस कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इनकी फिगर्स को देखकर जो कि बाद में उनके लिए बैड डेट्स हो जाएंगे, तो इस सेंस में फिर ये बैड है सर. इट डिपेंड अपॉन कंडीशन सर. ठीक है, it depends on condition जो है ना उसमें. Sir, to me it is bad in all the conditions. Actual and factual position should be displayed, और सारों को पता होना चाहिए कि अगर इस दफा हमारी कंपनी की अकाउंटिंग या फाइनेंशियल सिचुएशन ये है तो these are the reason and next time it will be okay or it will be worse. तो क्लियर पोजीशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए with all the stakeholders, and the management or the CFO should not play with the figures. My personal views. Very right. But do you think that having the stakeholders pressure and especially having the majority shareholders pressure, is it that easy that they can present the true and fair picture every time? And is it acceptable for them also? वो जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ना कि इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितने लोगों को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाता है जो है ना उसमें. समटाइम प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम आपको जो है ना वो प्रेशराइज कर रहा होता है कि जिसमें मजबूरन आपको जो है ना वो प्ले करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखें कि लास्ट ईयर जो कोविड की सिचुएशन रही है, बैडली इफेक्ट हुए हैं बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना उसमें. अब इसमें वो जो कंपनी जो कि जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था स्मूथ जो है ना वो रेशो से उनकी जो है ना वो अर्निंग्स ग्रो कर रही थी या उनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे थे, या दे वर रेगुलरली पेइंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, अगर उनका जो है उसके अंदर कोई डाउनफॉल आया है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एवरीवन नोज कि जी कोविड की वजह से एब्नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से कंपनी बैडली सफर हुई है, बट स्टिल people are not willing to invest in those companies which showed lower profits or which showed higher losses. They pulled out their investment. ठीक है, बहुत सारे जो रैशनल लोग हैं जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ जो है ना मूव करने वाले हैं, they may take their investment and they may go away जो है ना. तो what you have to do is there are analyst forecast, एक्सटर्नल प्रेशर भी हैं, फाइनेंशियल जो आपके जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने कोई प्रेडिक्शंस की हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. देयर इज अ प्रेशर कि आपने उसको भी जो है ना मीट करना है. आपके जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर. कंपनी की बैड परफॉर्मेंस की वजह से या कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से अब अगर कंपनी लॉसेस के अंदर चली जाती है तो वो जाहिर सी बात है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट. आगे जाके वो एक केस डिस्कस भी करते हैं जो पहले भी आपके साथ जो है ना वो शेयर किया हुआ था, बल्कि अभी अब इसमें ये बात केस ऑफ द सीमेंट कंपनी. Kosensa bhai, I'll take your question. In mid-90s, the country suffered from the acute shortage of the cement. So there was opportunity for the cement manufacturing plants that they can upgrade their plants, or there were opportunities for the new investors that they can establish the cement plants. और वो जो मार्केट में जो अपकमिंग जो पोटेंशियल था सीमेंट का जो सेल्स का लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट्स के, उससे बेनिफिट ले लें. तो हुआ क्या, 7 new plants were established during that time period जो है ना उसमें, because people keep on
looking for good opportunities. The moment they see an opportunity in a particular sector, they start investing it. Up to meet the local and demand and increase the exports, 7 new plants were established. It approximately takes around 3 years to establish a cement plant जो है ना उसमें, और तकरीबन 700 जो है ना करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 7 अरब रुपए की जो है ना इन्वेस्टमेंट है, अब ज्यादा ही है, बल्कि ये अर्ली 90s के जो है ना फिगर्स है. Country's economic scenario changed, and what happened that plants started operating at an average of around 22% production capacity to ensure that prices do not fall. अब जब 3 साल के अंदर अंदर ये जो प्लांट्स ऑपरेशनल होने लगे 3 साल के बाद, तो विद इन दोस 3 इयर्स जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री की, लोकल मार्केट की भी और फॉरेन मार्केट की भी, ऑल टुगेदर चेंज होगी. तो वो जो अपॉर्चुनिटी प्रीवियसली अवेलेबल थी रिगार्डिंग दी इंक्रीज सेल, जिसकी बेसिस के ऊपर ये नए सीमेंट प्लांट्स जो है ना वो लगाए गए, एस्टेब्लिश किए गए, वो मार्केट से वैनिश होगी. अब 2 ही पॉसिबिलिटीज थी कि जितने नए सीमेंट प्लांट लगे हैं ये भी धड़ाधड़ प्रोडक्शन करें, पुराने वाले भी करते रहें, एंड देयर इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ सीमेंट इन द मार्केट. तो जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो प्राइसेस के ऊपर क्या होना है, डिक्रीज हो जाएंगे, प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी जो है ना उसमें, डिक्रीज हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी. जी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगी. तो उन प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देना चाहिए, सप्लाई साइड को कंट्रोल कर लेना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एट 100% लेवल, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट जस्ट 22%, कि जो एक लेट्स सपोज जो है ना सीमेंट प्लांट 100 मेट्रिक टन जो है ना वो डेली प्रोड्यूस कर सकता था, इट जस्ट प्रोड्यूस 22 मेट्रिक टन जो है ना उसमें. तो 100% की कैपेसिटी वो रिड्यूस होकर रेवेन्यू जनरेटिंग जो है ना 22% पे आ गई. तो ऑब्वियसली when you are producing less, so it means that you are selling less, and when you are selling less, it means your revenues have declined. तो जहां आपने $100 अर्न करना था, वहां आपके जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होकर कितना आ गया, $22 के अंदर. लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट है, 72% ऑफ द एनुअल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, और दोनों की दोनों ऐसी हैं जो कि फिक्स कॉस्ट हैं, जो कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के साथ चेंज नहीं होनी. दीज आर टाइम बाउंड कॉस्ट है उसमें, इररेस्पेक्टिव क्या आपका सीमेंट प्लांट 100% ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट हो, सीमेंट प्लांट 0% जो है ना वो ऑपरेट हो रहा हो, आप जो है ना उसके जो है वो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी है, क्योंकि इट इज चार्ज ऑन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. 30 साल में आपने उस प्लांट को डेप्रिसिएट करना है, या जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपने पे करना है. तो कॉस्ट वहीं पे ही है, रेवेन्यू आपका डिक्लाइन हो गया है. तो नया सीमेंट प्लांट जिस पे आपने 7 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, इफ इट स्टार्ट्स शोइंग द लॉसेस, तो आप सोचें कि आपके शेयर होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशन होगी, या वो मैनेजमेंट के बारे में उनका क्या जो है ना वो राय होगी. दे विल लाइक टू फायर दैट मैनेजर जिसने जो है ना इसको जो है ना वो डिसाइड किया था कि सीमेंट प्लांट को जो है ना हम इस आइडिया को स्टार्ट करें, हम सीमेंट प्लांट जो है ना वो लगाएं. तो अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना वो प्रेजेंट करें, और ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स की वजह से देयर वुड बी बिलियंस ऑफ लॉसेस, और बिलियंस ऑफ लॉसेस की वजह से अपनी जॉब भी स्टेक पे है ऊपर है और दूसरे लोगों की जॉब भी स्टेक पे है. विदाउट ठीक है टेक इनटू दिस कंसीडरेशन कि देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम योर साइड, देयर वाज नो बैड इंटेंशन, देयर वाज नो जो है ना यू कैन से the mismanagement from your side. These are the external factors which have changed the demand in the market जो है ना, which was not under your control. तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि जब if you are producing less, it means higher cost per ton of the cement produced in any period leading to huge losses जो है ना. Obviously बात है कि आप जितनी जो है ना वो प्रोडक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपके लॉसेस जो है ना वो जो है ना होंगे. तो अब 22% पे ऑपरेट कर रहे हैं, कॉस्ट आपकी 100% ही है, तो देयर इज नो वे दैट यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. तो ह्यूज लॉसेस जब होंगे तो अब क्या इस मसले का हल करें. जी रियाज साहब आप कुछ कह रहे हैं. सर जी सर, दो चीजें हैं सर. एक तो ये कि जब इसके स्टार्ट में आपने बात की कि 7 कंपनीज आ गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है सर कि क्या स्टेट लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो इस चीज को ओवरसी कर रहा हो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री पॉपअप हो रही है और इस तादाद में हो रही है कि वो वर्चुअली इस सिचुएशन में आएगी कि वो अपनी लो कैपेसिटी के ऊपर काम करेगी. नंबर 1 सर, क्या ऐसे कोई सेटअप कोई मैकेनिज्म स्टेट लेवल पे है या नहीं? नंबर 2 ये सर कि ये सिचुएशन जो अभी नजर आ रही है, इसमें अगेन स्टेट का रोल आता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखे, ऐसे वेन्यूज को एक्सप्लोर करे कि ये इंडस्ट्री हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करे और हम एक्सपोर्ट कर सकें उस चीज को.
अपनी इंटरनल डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल रखें, बट अगर हम एक्सपोर्ट के वेन्यूज को एक्सप्लोर करें तो आई थिंक कि हम अपनी इंडस्ट्री को भी संभाल सकते हैं और अपनी इंटरनल डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, वो देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हम सर व्हाट आई थिंक इज जी जी प्लीज। सर व्हाट आई थिंक इज के इनको सर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी बहुत वो मार्केटिंग एक्टिविटीज अपनी हाई करनी चाहिए और कॉस्ट अपने जो पर आइटम कॉस्ट है उसको उसमें प्रॉफिट अपना कम रखना चाहिए, ताकि सर जितने रनिंग में आइटम्स आएंगे, जितने प्रोडक्शन होगी और उतनी रनिंग होती जाएगी, तो मैं भी फॉर कपल ऑफ मंथ्स लेटर ये अपने उस लॉस को कम कर सकें और जो इनकी प्रोडक्शन 22 पर आई हुई थी वो मे भी इंक्रीज होती जाए। व्हाट आई थिंक इज सर। ठीक है, जो है ना हनान ने जो है ना उसके पॉसिबल सोल्यूशन दिए हैं। रियाज साहब के जो है ना क्वेश्चन था, पहली तो बात ये है कि देखिए स्टेट की अगर इतनी ही जो है ना वो एफिशिएंटली जो है ना वो कर रहे होते तो हमारे इंडस्ट्री के आज ये हालात ना होते जिससे हम जो है ना वो जो है ना सफर कर रहे हैं। आप देख लें, एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना उसका बेड़ा गर्क होके रह गया जो है ना उसमें। ऑल्दो ऑप्शंस वर देयर, वी वर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट टेक्सटाइल जो है ना वो प्रोडक्ट्स, और वो मार्केट एक्सपोर्ट भी होती थी और पूरी दुनिया के अंदर हम सेल करते थे। लेकिन जब ये पावर शटडाउन, पावर फेलियर वाला इशू आया, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का आया, गैस शॉर्टेजेस के इशू आए, तो जब ऑर्डर्स टाइमली नहीं मीट कर पाए, उनको पेनल्टीज लगी, या वो उस क्वालिटी में नहीं जो है ना वो कर पाए कम्पीट जो कि मार्केट में इंटरनेशनली थी, या उन प्राइसेस को नहीं कर पाए जो कि इनपुट कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से हुई है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर इंडस्ट्री जो है ना वो गड़बड़ होती है जो है ना उसमें। तो टेक्सटाइल में हमने देखा है बहुत सारे यहाँ से टेक्सटाइल प्लांट जो है ना वो खत्म हो गए, बहुत सारे यहाँ से बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो शिफ्ट हो गए। रीजन बीइंग के लोकल इंडस्ट्री को जो है ना वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि उनको रिक्वायर्ड थी। तो ये तो एक कंसर्न है जो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है भी, बिजनेस कम्युनिटी का है भी, कि वो सपोर्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको शायद रिक्वायर्ड होनी है लोकल, लोकली सरवाइव करने के लिए भी और इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए भी, वो दोनों जो है ना वो पॉसिबिलिटीज नहीं एग्जिस्ट करते। विद लिमिटेशन टू सर्टेन जो है ना वो सेक्टर जिसमें आपका ऑटोमोबाइल भी है, जिसमें उनकी जो है ना काफी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना प्रेशर ग्रुप है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइम के लिए जो है ना किसी नई कंपनी को भी जो है ना वो लाइसेंस नहीं दिया गया पाकिस्तान में जो है ना प्रोडक्शन के लिए। और इसी तरह से इंपोर्ट के ऊपर भी जो है ना वो पाबंदी वगैरह लगाएगी, जिस वजह से जो लोकल मार्केट थी उसको स्टेबलाइज करने की जो है ना वो कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका डाउन साइड इफेक्ट आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चर जो कार्स थी उनकी क्वालिटी देख लें एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड, वो बिल्कुल ही जो है ना वो जो है ना लो कैटेगरी जो है ना वो रही है। इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं जी बाहर से जो है ना इम्पोर्ट कर लें। तो अगर लोकल इंडस्ट्री के अंदर वो पोटेंशियल हो जिससे वो क्वालिटी दे सकें या उस प्राइस को कम्पीट कर सकें, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोकल मार्केट भी जो है ना वो एस्टेब्लिश हो रही थी, जैसा अभी आजकल गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी ना जब आप इंडस्ट्रीज में लोगों को अलाउ करेंगे जो है ना उसमें आने के लिए। तो जब आप खुद ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट तो खुद ही आप कर्टेल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने तो उस चीज को एनहेंस करना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और वो चीजें जो है ना वो स्टेब्लिश हो सके। तो एक तो ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस वजह से जो है ना उस चीज को नहीं जो है ना वो किया गया। सेकेंडली, जब ये सिचुएशन अराइज होगी तो अब जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे अनान कह रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करें, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, या बहुत ज्यादा सप्लायर्स आ गए हैं और बायर्स कम है तो जबरदस्ती तो नहीं बेच सकते। उसकी सिचुएशन की एग्जांपल इसी तरह से ले लें, जैसे आज से 8-10 साल पहले क्रेडिट कार्ड्स लोग सेल करते होते थे, तो देयर वाज अ रूम इन द मार्केट जिसके जरिए जो है ना वो काफी हद तक जो है ना पेनिट्रेट कर लेते थे। आज आप देखें क्रेडिट कार्ड सेल करने वाले जिसके पास जाते हैं वो पहले ही कहते हैं कि यार 2 क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास पहले पड़े हुए हैं, आपका लेके क्या करूँ, तो वो कहते हैं सर मेरा भी प्लीज जो है ना वो ले ले, मैंने सेल टारगेट जो है ना मीट करने हैं। तो मार्केट में जब डिमांड ही एग्जिस्ट नहीं करती, मार्केट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप अपनी सेलिंग स्ट्रेटजीज को कैसे मैनेज करें। और ठीक है, नए एवेन्यूज सर्च करें, नई पॉसिबिलिटीज जो है ना वो सर्च करें, बट इट विल टेक टाइम। करंट ईयर जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो उससे इफेक्ट नहीं होने लगी। तो वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन वाज कि कन्वर्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम फिक्स टाइम रिलेटेड कॉस्ट टू अ वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कैसे है,
हाउ डेप्रिसिएशन सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड लगा हुआ है सर इसका डेप्रिसिएशन का, तो फिक्स अगर कॉस्ट आ रही है। अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करें तो फिर वो कम हो सकता है सर, लेकिन ये है कि वो शुरू में तो फिर भी ज्यादा ही आएगा, आखिर में जाके कम हो जाएगा। नहीं, पहले और कम से तो नहीं है, वो तो चेंज होने से है कि सर वो वो वेरिएबल वेरिएबल, सर वो ये वेरिएबल हो वेरिएबल हो जाएगी। जाएगा ना सर, उसमें डिक्लाइनिंग करेंगे तो वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। डबल डिक्लाइन करेंगे तो ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन शो होगी सर, और आपका वो जो लॉस है या टैक्स सेविंग वगैरह बचेगी। नहीं, उसका छोड़िए, ठीक है। उसमें ये है कि देखें फिक्स कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। सर वो कॉस्ट जो आपने पे Fixed करनी है, cost बेशक जो आप प्रोडक्शन incur करें या ना होगी। करें। अगर आप प्रोडक्शन करें या ना करें या कम करें या ज्यादा करें, फिक्स कॉस्ट इनकर होगी ही होगी। does not change with the level of activity or output is basically known as fixed cost. तो अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी वो वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखिए जब हम एग्जांपल देते हैं ना कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, डिक्लाइनिंग में भी वो फिक्स कॉस्ट होगी, डबल डिक्लाइनिंग में भी फिक्स कॉस्ट है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी अमाउंट चेंज हो रही है। This amount is not changing because of the level of activity. This amount is changing because of the method that we are using. उसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह से ले लें कि हम जनरली रेंट को फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। यस सर। लेकिन हर आप देखें रेंट एग्रीमेंट के साथ एनुअल इंक्रीमेंट्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल 10% रेंट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है फिर रेंट फिक्स कॉस्ट तो ना रही, हर साल के बाद वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह सैलरीज देख लें तो सैलरीज में आपके साथ एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, तो जब वो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं रही। तो क्वेश्चन ये है कि वो फिक्स कॉस्ट इस वजह से होती है बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट। वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके साथ उसकी जो है ना वो पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सारा महीना भी कोविड की वजह से जो है ना बिजनेस बंद हो गया और आपने कहा वर्क फ्रॉम होम करें, तब भी सैलरी उतनी जो है ना वो दे रहे हैं, ठीक है। और अगर जो है फैक्ट्री शट डाउन भी होगी, आपके फिक्स जो है ना वो सैलरी पे जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो वो जो चेंज है दैट चेंज इज टाइम बाउंड, दैट इज नॉट एक्टिविटी बाउंड। तो फिक्स कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट। लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट चेंज हो भी जाए तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो जब डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड कर रहे हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे, तो चाहे कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करे या कम प्रोड्यूस करे, चाहे वो प्रोड्यूस करे या ना करे, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन के तौर पे चार्ज करनी है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज फिक्स कॉस्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते भी हैं, वी डिवाइड द एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द प्लांट्स यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, जो है 6 बिलियन का जो है ना वो प्लांट लिया, 30 इयर्स यूजफुल है, उस पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो 20 बिलियन जो है ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट एनुअली आ गई। Instead of doing that, what you can do is you can divide the total cost of the plant over the total cement production in tons जो है ना वो कर दें। आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें टोटल जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर। तो अब यहाँ पे जब आप उसको प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर चेंजिंग दैट फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपने कहा था जी कि एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन की अगर अमाउंट चार्ज करते हैं तो दिस इज कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट इज 100,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ दैट इज 5, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। नाउ इररिस्पेक्टिव कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या रहे, ज्यादा प्रोड्यूस करें कम प्रोड्यूस करें, आपको ये कॉस्ट बियर करनी है। लेकिन आप इसी 100,000 को अगर आप ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द एसेट, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ की बजाय क्या कर दिया, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कर दिया। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पे डिवाइड कर दें। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितनी है, लेट्स सपोज 50,000 जो है ना मेट्रिक टन है, तो आपकी डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, $2 पर मेट्रिक टन। अब इसका बेनिफिट क्या है
कि अगर आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन भी कम आएगी। फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 के पॉइंट ऑफ 10,000 मेट्रिक टन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन कॉस्ट फर्स्ट ईयर की कितनी बनती थी? 20,000। बट अगर आपकी जो है ना लो डिमांड की वजह से आपने कम प्रोड्यूस किया, जैसे हमने कहा 22% पे ऑपरेट कर रहा था, 22% का मतलब है सिर्फ 2200 मेट्रिक टन प्रोड्यूस हुआ, तो इंस्टेड ऑफ 44,000 डेप्रिसिएशन, योर डेप्रिसिएशन इज जस्ट 4,400. Now you have lowered down your expense multifold just by changing the method of depreciation, by changing that fixed cost into variable cost. Is it clear? सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आहिस्ता चले सर, वो ग्रैप्स करने में प्रॉब्लम आ रही है जिस तरह हम जो नॉन अकाउंट्स वाले लोग हैं सर। अच्छा प्लीज, किसमें प्रॉब्लम है? यहाँ पे सर जो लेमैन समझता है वो ये समझ रहा है कि आपने अपने प्लांट की डेप्रिसिएशन को लिंक कर दिया उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि जितना उससे प्रोडक्ट लेंगे इतनी उसकी डेप्रिसिएशन होगी, मीनिंग देयर बाय कि अगर प्लांट कम चलेगा तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी तो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कम काउंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना, उसमें यू हैव लिंक्ड इट टू द प्रोडक्शन लेवल। अब उसका बेनिफिट क्या है कि जिन ईयर्स में आप कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा बिकॉज यू आर अर्निंग लेस, और इन अदर ईयर्स इफ यू आर अर्निंग मोर, यू आर जनरेटिंग मोर रेवेन्यू, तो आपका उसी के प्रोपोर्शनल जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। You haven't done anything bad. What you have done is you have changed the method of depreciation. आप उसको सिंपल जो है ना स्ट्रेट लाइन या डिक्लाइनिंग की बजाय आप क्या करके यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड के ऊपर चले गए। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड। जी हुसैन साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्लांट और मशीनरी है उसकी कोई आपने, जैसे हमने पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर कैलकुलेट की थी कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, वो 5 साल है, और इसमें हम उसको लिंक कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन पे, तो उस प्लांट की तो एक जैसे यूजफुल लाइफ डिक्लेयर्ड है उस तरह उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डिक्लेयर होगी कि इतनी वो प्रोड्यूस कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम प्रोडक्शन के साथ लिंक करते हैं और हमारी प्रोडक्शन उस तरह नहीं चलती है तो फिर हम यूजफुल लाइफ वाला पीरियड अगर हम ओवरशूट कर जाते हैं तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू विल कंटिन्यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट। देखें, आपका एसेट जीरो कब होगा? जब उसकी बुक वैल्यू जीरो होनी है। बुक वैल्यू जीरो कब होगी? जब आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी कॉस्ट के इक्वल चली जाएगी। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, तो उसके अंदर क्या है कि आप डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज दैट एसेट इज नॉट फुली डेप्रिशिएटेड, दैट इज इन योर यूज, तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। बल्कि मजे की आपको बात बताऊं कि ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसमें जो एयरक्राफ्ट्स की जो यूजफुल लाइफ होती है वो ईयर्स के ऊपर नहीं होती बल्कि फ्लाइंग आवर्स के ऊपर होती है, कि कितने आवर्स जो है ना उस एयरक्राफ्ट ने जो है ना एरोप्लेन ने जो है ना वो फ्लाई की है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, पीआईए तो उसमें शामिल ही है, लेकिन यू वुड बी अमेज्ड टू नो
कि यूके के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि उनकी फ्लाइंग ऑर्ड्स की जो है ना वो लाइफ कंप्लीट होने के बाद भी अराउंड 2 इयर्स वो जो उनके क्राफ्ट्स हैं स्पेशली जो बोइंग वगैरह है उसको वो यूज करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि वो उसको रीवैल्यू भी नहीं करते एसेट को, वो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम शो करते हैं कि उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू ऑलरेडी उसकी जो है ना वो जीरो हो चुकी है। तो ये प्रोविजन भी अवेलेबल है कि अगर आपने किसी एसेट को जो है ना वो कंप्लीटली डेप्रिशिएट कर दिया बट स्टिल इट इज यूजफुल, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आप उसकी टैक्स प्रैक्टिसेस के साथ अवेयर हैं तो जो आप यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं 30 इयर्स, टैक्स अथॉरिटीज तो उस 30 इयर्स को नहीं मानती। टैक्स अथॉरिटीज ने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि 10 ईयर प्रॉपर्टी क्लास आइटम्स ये हैं, बिल्डिंग है उसको 10 इयर्स में आपने डेप्रिशिएट करना है टैक्स पर्पजेस के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए चाहे आप 50 साल उसको यूज करते रहे, आपके पास मशीनरी है तो आपने 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास के अंदर उसको लेके आना है। मोटर व्हीकल्स हैं 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास के अंदर आना है। फर्नीचर है 3 ईयर प्रॉपर्टी क्लास के अंदर आएगा। तो टैक्स पर्पजेस के लिए आपने अगर बिल्डिंग है जिसको आप शायद 50 साल भी यूज करें, लेकिन वहां आप जब रिपोर्ट करेंगे टैक्सेस के लिए तो वहां सिर्फ आपने क्या करना है 10 साल के अंदर उस एसेट को डेप्रिशिएट करना है। तो आप 10 साल के बाद बिल्डिंग यूज तो कर रहे होते हैं, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन खत्म हो जाती है, अदरवाइज वो बिजनेस के यूजेज के अंदर तो रहता है। तो इन द सेम वे सम टाइम वो एसेट उसकी बुक वैल्यू जीरो हो जाती है, उस एसेट को ऑफ द बैलेंस शीट आइटम भी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करती रहती है, और ये प्रैक्टिस जो है ना वो अवेलेबल है। दूसरा तरीका कार ये हो सकता है कि जब आपने उसकी जो है ना वो लेट्स सपोज अभी यूजफुल लाइफ उसकी जो है ना वो रहती है और आप यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे जा रहे हैं, तो अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि उसकी यूजफुल लाइफ को कंसिडर करें। जैसे एयरक्राफ्ट में मैंने आपको कहा कि फ्लाइंग ऑर्स पूरे हो गए हैं, यूजफुल लाइफ चाहे अभी 3 साल और रहती है, एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा आपने चलाया, इतनी ज्यादा उससे फ्लाइट्स ली कि 3 साल पहले ही वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड पे जा रहे हैं या यूनिट आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो अब उस एसिड को आपको क्या कर देना चाहिए, सेल ऑफ कर देना चाहिए, उसको जो है ना वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से यूजफुल लाइफ तो कंप्लीट नहीं हुई लेकिन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। अब अगर उसको जो है ना लेंगे तो रिस्क है उसकी जो है ना डिटीरियोरेशन का, डैमेज होने का या प्रॉब्लम जो है ना फेस करने का। तो ये जो ऑफ एंड ऑन जो है ना वो पीएए के कुछ केसेस वगैरह जो है ना जो हुए हैं एयरक्राफ्ट के जो है ना डिस्ट्रक्शन के, उसमें एक रीजन ये भी था कि कई क्राफ्ट ऐसे थे जिनको जो है ना ऑन ग्राउंड कर लिया गया कि दे आर नो मोर जो है ना यूजफुल टू बी जो है ना फ्यून जो है ना उसमें, और लेटर ऑन उसके जो चेयरमैन या एमडी चेंज हुए हैं, उन्होंने उसको रीवैल्यू कराया और रीवैल्यू कराने के ऊपर उन्हीं को दोबारा फ्लीट के अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वंस यू हैव शिफ्टेड टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो फिर आपको उसकी कंसर्न की जरूरत नहीं है एसिड यूजफुल लाइफ। सर काइंडली एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, देखिए जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डिप्रिसिएशन तो बेसिकली फायदेमंद है कि जितना हम स्ट्रेट लाइन पे करेंगे और वो ओवरऑल उसकी कॉस्ट जब रिड्यूस हो जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी ऑनर को या कंपनी को। लेकिन जब हम उसकी प्रोडक्शन के साथ उसको रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली जब एबनॉर्मल उसका प्रोडक्शन रेट होगा तो वहाँ पे जो उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो स्टेट लाइन की बजाय ज्यादा अरसे के लिए आपकी बुक में चलेगी, तो जिसकी वजह से आपको जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो उस पे ज्यादा देर आपको देना पड़ेंगी, तो वो तो नुकसानदेह हो जाएगा। नहीं, प्लीज इसको काइंडली जो है ना वो क्लियर कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन डिक्लाइनिंग या डबल डिक्लाइनिंग, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इससे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा, और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होने की वजह से जो रिपोर्टेड आपका प्रॉफिट है, रिपीट जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो ज्यादा या कम हो जाएगा। कि अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो रिपोर्टेड प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं तो उन ईयर्स में आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग कि इट हैज नथिंग टू डू विद द टैक्स प्रैक्टिसेस जो है ना उसमें, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपके पास ये प्रोविजन अवेलेबल है कि कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप यूज कर लें अपने एसेट्स को जो है ना वो डेप्रिशिएट करने के लिए, या उनकी कोई भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रख लें, ये आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। लेकिन जब टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट करेंगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन के लिए एसेट्स की प्रॉपर्टी क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बिल्डिंग के लिए अगर एसेट प्रॉपर्टी क्लास डिफाइंड है कि इट इज 10 इयर्स एसेट प्रॉपर्टी क्लास, तो उसमें यह है कि इररिस्पेक्टिव कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी भी हो, उसकी डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है 10 साल में ही चार्ज करनी है टैक्स पर्पसेस के लिए।
ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम डेप्रिसिएशन को ज्यादा या कम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स बेनिफिट को जो है ना वो ले सकते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज के लिए जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पे जो प्रॉफिट है वो टोटली डिफरेंट जाएगा। जिन लोगों का थोड़ा सा फाइनेंस के साथ बैकग्राउंड है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फिर बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपने देखा होगा सम टाइम डेफर्ड टैक्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाता है। मींस जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया होता है और जो टैक्स अथॉरिटीज ने कैलकुलेट किया होता है उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस किस वजह से आता है, इसी किस्म के जो है ना वो आपकी जो है ना डिफरेंट आइटम्स की जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है और टैक्स रिपोर्टिंग के लिए उनकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके जी, तो ये तो अब अगर हम इसको चले जाएंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे, तो क्योंकि आउटपुट कम है तो आउटपुट की बेसिस के ऊपर एक्सपेंस भी कम होगा। तो जब एक्सपेंस आपका कम है तो ऑटोमेटिकली आपका इस साल का जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा जो है ना उसमें। तो अब मुझे बताएं व्हाट्स बैड इन दिस थिंग। इसमें कोई गलत नहीं है। जो आपका फाइनेंस मैनेजर था उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी सीमेंट प्लांट को इंपोर्ट करने की, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी कि ये गलत हो जाएगा, आपके जो है ना वो प्रॉफिट की बजाय कंपनी लॉसेस के अंदर चली जाए। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गए। अब किसी स्टेक होल्डर ने या शेयर होल्डर ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना कि अगर ये चेंज हो सकते थे तो पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं की। आपको जरूरत क्या थी नया सीमेंट प्लांट लगाने की, जब हम एग्जिस्टिंग जो है ना बिजनेस ऑपरेशन से अच्छा वाला प्रॉफिटेबल हो रहे थे, तो ये नया जो है ना पंगा लेने की क्या जरूरत थी। और उसकी आप रिपरकशंस देख लें कि हम लॉसेस फेस करना शुरू कर दें, तो उसको किसी ने एडमिट नहीं करना कि आपने गुड फेथ में गुड इंटेंशन में किया था, मार्केट के हालात चेंज हो गए। तो वन पॉसिबल सोल्यूशन अवेलेबल इज कि विद इन द रूम्स दैट यू आर हैविंग एज अ फाइनेंस मैनेजर, आप क्या करें, उस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर लें। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होने से आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होने से आपका जो प्रॉफिट है, जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है, वो लॉसेस जो है शायद प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए या रिपोर्टेड लॉसेस जो है वो कम हो जाए, तो इट इज गुड फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So coming back to the discussion which we were saying that whether it is good or bad, it as soon as the word creative accounting comes in the mind, it seems that there is some kind of manipulation, dishonesty or deception. But creative accounting is a tool which is much like a weapon जो है उसमें, जो आपके पास कोई weapon है, वो weapon itself कोई अच्छा या बुरा नहीं है, उसका यूज आप उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर आपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है या वैसे किसी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए रखा हुआ है, या आपको शिकार का शौक है जो है ना उसके लिए आप यूज करते हैं, किसी इंसान की जान नहीं लेनी, तो वो अच्छा है। लेकिन उसी को अगर किसी को मारने की इंटेंशन के साथ आपने रखा हुआ है, तो वही जो वेपन है that would be considered as injurious, that would be considered as harmful. So same goes with the creative accounting. If you are playing with the numbers with the intention that you want to show a better position of the business organization, not to damage someone, but just to show a better position because the macroeconomic factors were like that, कि जिसमें आपकी परफॉर्मेंस डिटीरियरेट होगी और आपकी जॉब स्टेक के ऊपर है, बाकी लोगों की जॉब स्टेक पे हो सकती हैं, एंड देयर इज नो you can say fraudulent or negligent act on your part, तो उसमें ये जो manipulation है या playing with the numbers है, it could be good. But on the other side, if it is mishandled या उसको जो है ना harm के लिए use कर रहे हैं, तो obviously it would be considered as bad जो है ना उसमें। और पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में जहाँ पे आप देखें स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आता है, जरा से किसी की जो है ना जमात की तरफ से धरने की बात आती है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात आती है, फौरन से इंडेक्स जो है वो नीचे चला जाता है। अब मुझे बताएं कि इसमें जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का क्या जो है ना रोल है। वो तो बेचारे कुछ भी नहीं उसका कर सकते। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसने इफेक्ट किया, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस डाउन आ गई, प्राइसेस डाउन होने की वजह से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस लूज हुआ, उसने इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर